Hello students, today we shall start one new chapter in Science and Technology Standard 10th Part 1 Maharashtra Board. See, the name of the chapter is Gravitation. This is the basic chapter of physics. All the chapters in physics is based on this gravitation, Newton's law of gravitation. It is applicable everywhere in physics. See, we have seen in previous standard that gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. So it is known as universal force. Universal force का मीनिंग क्या है? पूरे यूनिवर्स में एक्ट करता है. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड. किसने डिस्कवर किया था फोर्स? सबको पता है. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all the apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. पूरे एंगल vertically क्यों गिरता है? एंगल पे क्यों नहीं गिरता है? Why do they not fly off in a horizontal direction? Horizontal direction में क्यों नहीं जाते? After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. तो बहुत सोचने के बाद में he came to conclusion कि अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को. Attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is vertical. अभी एप्पल से लेकर अर्थ के सेंटर का डायरेक्शन ये क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है. एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो एक्चुअली एप्पल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ का सेंटर. तो एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड दैट डायरेक्शन इज वर्टिकल. सो द एप्पल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन. See figure 1.1 on the left. See this figure. Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. अर्थ से भी बड़ा एप्पल ट्री बहुत बड़ा बताया इसमें. एक्चुअली छोटा रहता है ट्री. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along perpendicular from position of the apple to the surface of the earth. तो एप्पल से लेकर अर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर. फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून. द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल. से मून बहुत नजदीक दिखा है, पेड़ बहुत बड़ा है, तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल. सो ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर भी एक्ट करता है. न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स on the tree at different heights from the surface of earth, can it also act on objects at even greater height much farther away from the earth, like for example the moon. So न्यूटन सोचने लगा कि जब एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो कैन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन मून ऑल्सो? कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स इन द सन? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सन के ऊपर एक्ट करता है क्या? नो, यू ऑल ऑफ यू टेल मी. सन के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है क्या? करता है. हमने पढ़ा है ऊपर. यूनिवर्सल फोर्स. सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी सन को अट्रैक्ट कर रहा है. फोर्स एंड मोशन. वी हैव सीन दैट ए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम लोग स्पीड चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम चेंज कर सकते हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट आर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन? कुछ याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? नहीं याद है तो रिवाइज करके ले लो. हर एक जगह साइंस में इसका एप्लीकेशन आता है. न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of recent times. He was born in England. He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia. Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motions. However, the reason why planets move in the way described by Kepler's laws of motion were not known. तो न्यूटन के
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले केपलर ने 3 लॉ बनाए थे जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन केपलर को उसका रीजन पता नहीं था। लॉ तो बना दिया उसने, लेकिन उसका रीजन पता नहीं था। न्यूटन विथ हिज थियरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ। तो न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल थियरी के कारण के हेल्प से मैथमेटिकली केपलर के लॉ को डिराइव किया। इन एडिशन टू दिस, Newton did ground-breaking work even in several areas including light, heat, sound, mathematics. So everywhere, light chapter में आएगा, heat chapter में आएगा, sound में आएगा, mathematics में भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए न्यूटन ने। He invented a new branch of mathematics. This is called calculus and has wide-ranging application in physics and mathematics. हाँ, जब तुम 11th-12th में जाएंगे साइंस स्ट्रीम में, दैट टाइम यू विल स्टडी कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरा मैथमेटिक्स जब शुरू होता है। अभी हम तो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ, से सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, ये फिगर में देखो, ये फिगर में देखो, एक स्टोन को एक थ्रेड से टाई किया है और स्टोन को राउंड रोटेट करने का। ओके, अब ये जो स्टोन है, ये स्टोन राउंड सर्कल में घूम रहा है, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग so that the stone moves along a circle as shown in figure. Are you applying any force on the stone? In which direction is the force acting? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? हाँ, now in this figure, stone के ऊपर तुम force act कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टोन क्या कर रहे तुम अपने तरफ पुल कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है एरो मार्क है, तो स्टोन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is toward the center of the circle, and are applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. हाँ, now see here, suppose ये स्टोन है, ये स्टोन रोटेट कर रहा है। हाँ, ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, उसको स्ट्रिंग अपने सेंटर के तरफ उसको पुल कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सपोज ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कट कर दिया, स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कट कर दिया। नो व्हाट विल हैपन, ये स्टोन जो रहता है यहाँ से टेंजेंशियली सीधा चले जाएगा, सर्कल में नहीं घूमेगा। ओके, हाँ, सो इसका मीनिंग क्या है, इस सर्कुलर मोशन के लिए ये फोर्स बहुत जरूरी है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म्ड ए सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियसली इन विच 5 रुपी कॉइन केप्ट ऑन ए रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क फ्लाइज ऑफ द डिस्क along द टेंजेंट टू द डिस्क। एक राउंड डिस्क लिया, 5 रुपये का कॉइन रखा, और जब डिस्क का स्पीड हम इंक्रीज करते हैं तो 5 रुपये का कॉइन जो डिस्क के बाहर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चले जाता है। Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed toward the center of the circle, and this is called centripetal force. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राउंड घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। हाँ, यहाँ पर हमने देखा, हाँ, जब ये ऑब्जेक्ट राउंड सर्कल में घूम रहा है तो कोई उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। जब ये स्टोन यहाँ पर आ गया, उस समय देखो ये थ्रेड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, स्टोन यहाँ पर आ गया, थ्रेड का डायरेक्शन अगेन सेंटर की तरफ रहेगा। सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड हियर हु इज प्रोवाइडिंग दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है, इसलिए स्टोन जो है राउंड घूम रहा है। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यू नो दैट द मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोस अराउंड इट इन डेफिनेट ऑर्बिट। नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रहते हैं, हाँ, मैन मेड सैटेलाइट अर्थ के राउंड घूमते रहता है, और ये मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during its motion.
डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? हाँ, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? अरे मून भी सर्कल में घूम रहा है। हाँ, इसके पहले हमने ऊपर देखा था सर्कल में कोई चीज अगर घूमता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स को क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मून भी सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट? डू द अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम revolve around the sun in a similar fashion? Is similar to force acting on them? What must be its direction? अब ये अर्थ है, और ये है मून। सी मून अर्थ के राउंड घूम रहा है। हाँ, जैसे ऊपर का हमने यहाँ पर देखा एक्सपेरिमेंट, जैसे स्टोन राउंड सर्कल में घूम रहा है, मून भी राउंड सर्कल में घूम रहा है। हियर वी हैव सीन, अगर हमने थ्रेड को अगर कट कर दिया तो कैसे चले जाता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अभी मून के और अर्थ के बीच में एक थ्रेड है। हाँ, अर्थ क्या कर रहा है? मून को अपने पास खींच रहा है थ्रेड से, लेकिन ये थ्रेड है ना इनविजिबल है, किसी को दिखता नहीं है, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो मून है ये राउंड सर्कल में घूमता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स provides the necessary centripetal force. In the same way, Earth is moving around the sun, Earth and other planets. So the gravitational force between sun and planets, it is providing the necessary centripetal force. From the above activity, example and questions, it is clear that for the moon to go around the Earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the Earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets including the earth towards itself. So, अर्थ क्या कर रहा है? मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एंड सन क्या कर रहा है? प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दे आर मूविंग अराउंड द सन। हाँ, नो टेक केपलर्स लॉस। Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observers of the planet's positions were made with naked eyes. हाँ, गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया, उसके पहले पूरे प्लैनेट के पोजिशन दे वर मेड बाय नेकेड आइज। By the 16th century, a lot of data was available about planetary positions and motion. John Kepler studied these data. He noticed that the motion of the planets follows certain laws. तो सबसे पहले केपलर ने क्या किया? जो पहले का जो डाटा अवेलेबल था उसको स्टडी किया। He noticed that the motion of the planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's laws, which are given below. तो सबसे पहले केपलर्स लॉ, उसके बाद में न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ आया। हाँ, डू यू नो An ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. सी यहाँ पर एक कोन दिख रहा है, कोन को अगर हमने ऐसा कट कर दिया तो हमको मिलता है एक फिगर, उसको कहते हैं हम एलिप्स। इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट्स। एलिप्स के अंदर 2 पॉइंट रहता है, ये पॉइंट F1, ये पॉइंट F2, ये दोनों पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो एक एलिप्स के अंदर 2 फोकस रहते हैं। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टेंट। से F1 से लेकर B और F2 से लेकर B, यानी कि BF1 प्लस BF2, ये जो सम रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल AF1 प्लस AF2 विल बी इक्वल टू BF1 प्लस BF2। F1 and F2 are 2 focal points on the ellipse shown in the figure. If ABC are 3 points on the ellipse, then AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to CF1 plus CF2. So ellipse के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लिया हमने तो sum of its distance from the 2 foci are always equal. फोकस सिंगुलर एंड 2 फोकस है यहाँ पर तो उसको हम फोसाई बोलते हैं। फोसाई इज प्लूरल ऑफ फोकस। सो व्हाट आर द फोसाइज? F1 and F2। तो sum of the distance means BF1 plus BF2 is equal to AF1 plus AF2 is equal to CF1 plus CF2। हाँ, व्हाट इज दिस एलिप्स? एलिप्स को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ये कोन है, हाँ, आइसक्रीम
आइसक्रीम का कोन रहता है ना, उसको उल्टा करने का, उसको ऐसा कट करने का, हमको ऐसा टाइप का फिगर आएगा। हाँ, स्लैंटिंग में कट करने का, वी गेट एन एलिप्स। हाँ, नो टेक केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। हाँ, सो प्लैनेट जब सन के, ये सन है और ये प्लैनेट राउंड घूम रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। हाँ, सो द पाथ अलोंग विच ए प्लैनेट मूव्स इज नोन एज ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट का ऑर्बिट रहता है ना, ये राउंड नहीं रहता है, ये एलिप्टिकल रहता है। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। सन कहाँ पर है, यहाँ का सेंटर में नहीं है, सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोसाई। Figure 1.4 shows elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. हाँ, यहाँ पर देखो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यहाँ पर दिख रहा है AS, हाँ BS, CS, DS। ये जो लाइन है ना, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। से ए से लेकर बी के आने के लिए सपोज टाइम लगता है टी, सी से लेकर डी तक आने के लिए सपोज टाइम रिक्वायर्ड इज टी, ई से लेकर एफ तक आने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है टी। नाउ दिस एरिया 1 इज इक्वल टू दिस एरिया 2 इज इक्वल टू दिस एरिया 3। सो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, सो ये देखो, ये जो एरिया 1 है इट इज इक्वल टू एरिया 2, इट इज इक्वल टू एरिया 3। क्यों? क्योंकि द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टू मूव फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू टाइम टू मूव फ्रॉम ई टू एफ। ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। ए से लेकर बी के लिए जो टाइम लगता है, सेम टाइम फॉर सी टू डी। दैट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी आर शोन बाय बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। The straight lines AS and CS sweep equal area in equal interval of time, that is area ASB and area CSD are equal. हाँ, so area ASB is equal to area CSD, it is equal to area ESF. तो ये हो गया केपलर सेकंड लॉ। हाँ, केपलर के 3 लॉ से सेकंड लॉ हो गया है। हाँ, अभी थर्ड लॉ, सी केपलर्स थर्ड लॉ, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Square of its period of revolution around the sun. Period of revolution का मतलब what is the time required for one complete round? What is the time required by the planet to move once around the sun? उसको कहते हैं period. It is denoted by T, capital T. It is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. हाँ, से यहाँ पर है सन, ये है प्लैनेट, ठीक है। हाँ, ये प्लैनेट जो है ये राउंड यहाँ से यहाँ तक घूमकर आता है, उसको टाइम कितना लगता है टी। सो पीरियड, हाँ, यहाँ की 1 राउंड, द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट राउंड इज नोन एज पीरियड। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या दिया इसके अंदर, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो यू कैन से दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। व्हाट इज दिस आर? What is this R? The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of a planet from the sun. प्लैनेट का सन से, यहाँ पर देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, ये सबका एवरेज मीन डिस्टेंस। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. So we can say that t square is proportional to r cube or t square upon r cube is constant which is equal to k.
Kepler obtained these laws simply from the study of position of planets obtained by regular observation. So Kepler ने कुछ भी साइंस अप्लाई नहीं किया, हाँ, उसको ये लॉस कैसे मिले? By studying the position of the planet by regular observation. He had no explanation as to why planets obey these laws. We will see below how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. So ये लॉस का रीजन पता नहीं था केपलर को, लेकिन ये जो लॉस है ये लॉस न्यूटन को हेल्प किया. किस लिए हेल्प किया? फॉर फॉर्मिंग हिज थियरी ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल थियरी बनाने के लिए न्यूटन को ये 3 लॉस से बहुत हेल्प हुआ है. हाँ, सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट केपलर्स लॉस. तो फर्स्ट लिखने का केपलर्स फर्स्ट लॉ, देन यू हैव टू राइट डाउन केपलर्स सेकंड लॉ, देन केपलर्स थर्ड लॉ, एंड दिस फिगर ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ. ये फिगर किस लिए है? टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. ओके, हाँ, now you take Newton's universal law of gravitation. Again very important question. State Newton's law of gravitation. लिख कर ले लो. State Newton's law of gravitation. उसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है. All the above considerations including Kepler's law led Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करने का. According to Newton's law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a definite force. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है by a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ, see, suppose we are having two objects. ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d. नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा. फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो व्हाट वी गेट? वी गेट f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर. व्हाट इज दिस g? g का मतलब है इट इज ए कांस्टेंट. हाँ, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हाँ, सो ये फॉर्मूला याद रखने का, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है. एफ इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर. हाँ, सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object by a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ, see, figure 1.5 shows two objects with masses m1 and m2 kept at a distance d from each other. दो objects है, this is mass m1, this is mass m2. दोनों के बीच में distance है d. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as F is proportional to, ये proportional का साइन है, F is directly proportional to m1 m2 upon d square. मैंने separately समझाया था तुमको, पहले F proportional to m1 m2, फिर F is inversely proportional to d square. दोनों को अगर combine किया, हाँ, see, F is proportional to m1 m2, inversely proportional to d square. On combining them, what we get? F proportional to m1 m2 upon d square. So F is equal to G m1 m2 upon d square. G is constant of proportionality and it is called universal gravitational constant. याद रखने का, कैपिटल G याद रखने का. हाँ, this G is constant of proportionality. It is called universal gravitational constant. The above law means that if the mass of one object is doubled, the force between the two objects also doubles. Also, if the distance is doubled,
द फोर्स डिक्रीसेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। ये फॉर्मूला देखो, इसमें समझो m1 को डबल कर दिया तो न्यूमरेटर डबल हो गया, फोर्स विल बिकम डबल। डिस्टेंस को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, मीन्स द फोर्स विल बिकम 1/4। सो इफ एनी वन ऑफ द मास को डबल किया तो फोर्स विल बिकम डबल, एंड डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स विल बिकम 1/4। डिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स किया तो फोर्स विल बिकम 1/9 टाइम्स। If the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the centers of the two bodies, and the distance between the centers is taken to be d. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force is along the line joining their centers of mass. सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट स्फीरिकल है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग देयर सेंटर्स। अगर स्फीरिकल नहीं है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास एंड डी टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ मास। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास। फ्रॉम इक्वेशन 2 it can be seen that the value of g is the gravitational force acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other। इसका मीनिंग क्या है, हाँ तुमको मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो हमको ये फॉर्मूला आया, सी इफ m1 is equal to 1, m2 is equal to 1 and d is equal to 1। m का यूनिट क्या रहेगा, मास का यूनिट 1 kg, ये भी है 1 kg और ये है 1 मीटर। व्हाट विल हैपन हियर, F विल बी इक्वल टू g 1 into 1 upon 1 square। 1 into 1 upon 1 square is how much, 1, और so we can say that F is equal to g। so g का वैल्यू कैसा फाइंड करने का, सपोज दो मास लिया हमने 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज नथिंग बट g। See from equation 2 it can be seen that the value of g is the gravitational force acting between two unit masses। unit masses का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, kept at a unit distance away from each other। unit distance का मतलब है 1 मीटर away from each other। दो मास लिया 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। So g is the gravitational force acting between those two masses। ये दोनों masses के बीच में जो force act हो रहा है it is nothing but this g, capital G। Thus in SI unit, SI unit, the value of g is equal to gravitational force between two masses of 1 kilogram kept 1 meter apart। So दो मास लेने का 1 किलोग्राम का, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, एंड दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज नथिंग बट g। Show that in SI unit the unit of g is Newton meter square per kg square। kg राइज टू -2 दिया है, हाँ ये याद रखने का। यूनिट ऑफ g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg राइज टू -2 का मतलब है डिनोमिनेटर में आ गया, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हाँ सेम फॉर्मूला ले लो, F is equal to g m1 m2 upon d square। So from this formula what we get, we get g is equal to F into d square upon m1 m2। सेम फॉर्मूला देखो, g d स्क्वायर को यहाँ लाया तो f into d square it will come in the numerator, m1 m2 will come in the denominator। So g is f d square upon m1 m2। what is the unit of force, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, सो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर। m1 का यूनिट है किलोग्राम, m2 का यूनिट है किलोग्राम, सो यहाँ पर आएगा kg स्क्वायर। सो एक कैपिटल G का यूनिट क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और सेम थिंग वी कैन ऑल्सो राइट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg राइज टू -2, न्यूमरेटर में आए तो राइज टू -2। हाँ ये याद कर लेने का।
द वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया जी का वैल्यू। इन एसआई यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का वैल्यू कितना रहता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ, इसको बायट कर लेने का, ये काम में आएगा तुमको आगे फिजिक्स में, एवरीवेयर इट्स एप्लीकेशन इज देयर। कैपिटल जी का वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर भी रह सकता है। सेंटर ऑफ मास बाहर कैसा रहेगा? हाँ, सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड। हाउ? सी, ये मैंने डिस्क लिया, आई हैव टेकन वन डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? यहाँ पर सेंटर में। ये क्या है? ये डिस्क है। And I have taken a ring, ये रिंग है। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मास नहीं है। क्यों? मास तो सिर्फ यहाँ पर है, दिख रहा है? मास इज अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पर मास नहीं है। सो सेंटर ऑफ मास कैन बी इन द मटेरियल और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। से अगर समझो मैंने ये लिया, ये आयन का बार है, उसका शेप यल के जैसे। अगर किसी ने पूछा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। इट इज अगेन आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। सो सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। हाँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करके ले लो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, से ये जो हमने पढ़ा अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ, उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू पॉइंट। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट के पास है मास m1, ये पॉइंट के पास है मास m2। सो सपोज यहाँ पर अगर स्पीयर है तो पूरा स्पीयर का मास m1 ये पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सपोज एक डिस्क है तो पूरा डिस्क का मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। रिंग, उसका मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। सो वी एज्यूम दैट द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center। Suppose हमने अगर स्पीयर लिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहता है? हाँ, एट जियोमेट्रिकल, स्पीयर के सेंटर में। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रोइड। Why did Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? He was helped by Kepler's third law in this as shown below। हाँ, अभी न्यूटन ने जब ये लॉ बनाया, हाँ, न्यूटन ने जब ये लॉ बनाया तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते। द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। हाँ, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन को किसने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लेना चाहिए? न्यूटन को कैसा पता चला क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर? विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। केपलर के लॉ के हेल्प से न्यूटन को समझ में आया कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाँ, अभी हमें देखने होगा। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। सपोज एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच ए मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle। इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा है कोई भी मोशन, सर्कल में मोशन कब पॉसिबल है? if some force is acted towards the center of the circle and this force is called centripetal force। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में नहीं घूम सकता अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो। if m is the mass of the object and v its speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to F is equal to mv square upon r। हाँ, सो ये फॉर्मूला याद रखने का। ये फॉर्मूला किसका है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
हाँ, सो याद रखने का सी, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ये सी सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सर्कल. सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc. हाँ, आई एम राइटिंग Fc. Fc का मीनिंग है सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका फॉर्मूला है mv² अपॉन r. सपोज ये सर्कल का रेडियस r है, हाँ, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है v, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r. फॉर्मूला को बैठ करके ले लो, आगे इसका एप्लीकेशन आता है आगे हायर क्लासेस में. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r. फॉर्मूला कैसा बैड करने का, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल मेथड है, टेक Fc इक्वल टू mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r. ऐसा 1000 बार रिपीट करो. अभी आप बोलेंगे 1000 बार सर इतना सारा बहुत कितना टाइम लगेगा. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में हो जाता है. हाँ, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r. हाँ, किधर भी घूमते फिरते फॉर्मूला को बैड करके ले लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r. वैसे किसने अगर पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r², F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r². किसी ने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G, कैपिटल G का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको भी बैड करके ले लो. हाँ, कैपिटल G का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. हाँ, इफ ए प्लैनेट is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet toward the sun must be F is equal to mv² अपॉन r. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन को कैसे पता चला इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में. न्यूटन को कैसा पता चला कि ग्रेविटेशनल व्हाट वी से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² क्यों आता है फॉर्मूला में. हाँ, तो केपलर का जो लॉ है उसके हेल्प से उसको पता चला. सो उसने क्या एज्यूम किया, सन. हाँ, सन के अराउंड में एक प्लैनेट घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म का मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है. देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड द सन मस्ट बी F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, where m is the mass of the planet, v is its speed, r is its distance from the sun. Small m क्या है, mass of the planet, v क्या है, speed of the planet, and r क्या है, उसका distance from the sun. The speed of the planet can be expressed in terms of period of revolution t as follows. Period of revolution हमने ऑलरेडी देखा है, t का मतलब क्या है, हाँ, what is the time taken by the planet for one complete round, एक पूरे राउंड के लिए टाइम कितना लगता है. Can you tell me what is period of revolution of earth around the sun? हमारा आंसर आएगा t is equal to 365 days. अर्थ का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, t is equal to 365 days. हाँ, the distance traveled by the planet in one revolution is equal to perimeter of the orbit 2 pi r. एक राउंड में प्लैनेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 pi r. r is the distance of the planet from the sun, time taken, period of revolution is equal to t. So v is equal to distance upon time, that is 2 pi r upon t. करेक्ट है. स्पीड ऑफ द प्लैनेट क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, सो 2 pi r अपॉन t. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r. m v के जगह लिख डालो 2 pi r अपॉन t का स्क्वायर अपॉन r. 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4. m यहाँ पर लिख दिया, पाई का स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा r स्क्वायर अपॉन r. r स्क्वायर अपॉन r कैंसिल होकर व्हाट इज लेफ्ट, ओनली r. और एक t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इट विल कम इन डिनोमिनेटर t स्क्वायर. सो इसको सिंप्लीफाई किए तो व्हाट वी गेट, 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर वी गेट, इसको इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर करने का. हाँ, सो सी 4 यहाँ पर है m, ये है पाई स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा r क्यूब. डिनोमिनेटर में देखो t स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय r स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव डन, ये इंटू कर डालो, यहाँ पर इक्वल टू साइन है ओल्ड टेक्स्ट बुक में, न्यू टेक्स्ट बुक में पता नहीं. हाँ, इसको इंटू कर डालो.
सो व्हाट यू आर डन, इसको मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऊपर इंटू आर स्क्वायर करें तो आर क्यूब हो जाएगा और नीचे एक आर स्क्वायर आ जाएगा. सो वी आर गेटिंग एफ इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. नो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. हाँ, केपलर का थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज रेडियस. सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट के है. सो वी गेट एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के. डिनोमिनेटर में के आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्यों आएगा, यहाँ पर उल्टा है, दिख रहा है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन के. सो एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के. बट 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है. सो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज कांस्टेंट, देयरफॉर यहाँ पर और एक स्टेप ऐड कर देने का, देयरफॉर f is inversely proportional to r square, क्योंकि बाकी पूरा कांस्टेंट है. Thus Newton concluded that centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. तो इससे न्यूटन ने कंक्लूड किया. अभी इसमें जो f है, प्लैनेट और सन के बीच में जो फोर्स है, इट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हाँ, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है प्लैनेट के लिए, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया कि दिस फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इससे न्यूटन को ये फॉर्मूला बनाने में हेल्प हुआ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर. नेचर में दूसरे फोर्सेस भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाँ, न्यूक्लियर फोर्स है. तो बाकी सब फोर्सेस है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बहुत वीकर है. द यूनिवर्स बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर. बहुत वीक होने के बावजूद पूरा जो ब्रह्मांड है वो किसके ऊपर चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. हाँ, सन के राउंड में जितने प्लैनेट घूम रहे, प्लैनेट के राउंड में जितने मून घूम रहे, सब किसके कारण है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर but it controls the universe and decides its future. This is possible because of huge masses of planets, stars and other constituents of the universe. क्यों possible है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में आता है m1 इंटू m2 और इसके अंदर जो रहता है ना मास जो है प्लैनेट का, स्टार का, ये बहुत ज़्यादा है. इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव in this complete what we say solar system or in complete universe we can say, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक्ट करता है वो. हाँ, टेक सी एग्जांपल 1. महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. देयर मासेस आर 75 kg 80 kg रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. सबसे पहले फिजिक्स में कोई भी सम सोल्व करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन गिवन. हियर गिवन r इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. m1 इज हाउ मच, 75 kg, m2 इज हाउ मच, 80 kg एंड कैपिटल G ऑलरेडी वी हैव सीन, उसका वैल्यू कितना रहता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. व्हाट वी वांट टू फाइंड हियर, हमको फाइंड करना है फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स कितना है. F is equal to, write down first formula, G m1 m2 upon r square. So F is equal to, G का वैल्यू है 6.67 10⁻11 इंटू m1 है 75 m2 है 80 अपॉन r स्क्वायर मीन्स अपॉन 1 स्क्वायर. इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना आएगा, 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन. मल्टीप्लाई आएगा करने को, हाँ, 80 इंटू 75 इंटू 6.67,
हाँ पहले 8 इंटू 75 कितना आएगा, 75 150 6000 आएगा यहाँ पर। हाँ सी फर्स्ट व्हाट आई शैल डू, 80 इंटू 75 करेंगे पहले हम, 80 इंटू 75। हाँ ये ज़ीरो यहाँ पर लिख दिया मैंने। 8 इंटू 75 कितना होता है, 75 150 600। मैथमेटिक्स फास्ट रहेगा तो बहुत फास्ट हो जाता है, नहीं तो इंटू करते बैठेंगे। वहाँ व्हाट आई हैव डन हियर, जीरो यहाँ पर लिख दिया पहले। 8 इंटू 75 यानी कि 75 का डबल 150, उसका डबल 300, उसका डबल 600। हाँ ये ट्रिक, हाँ जब तुम रेगुलर क्लास में आएंगे उस समय मैं समझाऊंगा तुमको। 6000 इसको इंटू क्या करने का है अभी, 6.67 करने का है, 6.67 से इंटू करने का है। 6 इंटू 7 42 4, 6 6 are 36 40 0 4, 6 6 are 36 40। पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर, इंटू 6 कर दिया, यहाँ पर पॉइंट आएगा। इंटू 1000 बोले तो इट विल कम लाइक दिस 40020। हाँ इंटू कितना है, 10⁻⁻11। व्हाट आई शैल डू, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या करने का, डिवाइड बाई 10,000 और यहाँ पर इंटू 10,000। डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इन डिवाइड बाई 10,000 इंटू 10,000। यहाँ डिवाइड बाई 10,000 कर दिया तो क्या आएगा, 4.002। हाँ पॉइंट विल शिफ्ट 1 2 3 4 प्लेसेस, 4.002। यहाँ पर 10⁻4 हो गया, 4 - 11 कितना हो गया, 10⁻⁻7। हाँ इतना हाई लेवल का सम वर्कआउट तुमको नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन तुम लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, हाँ हाउ टू डू इट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड विराट कितना रहेगा, 4.002 10⁻⁻7 न्यूटन। हाँ अब ये क्यों आया है तुमको पता चलेगा जब दो स्टूडेंट 1 मीटर दूरी के ऊपर बैठ रहे। हाँ तो यू विल से कि सर दोनों के बीच में फोर्स कैसे कहाँ पर एक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स इज वेरी वेरी लेस, दिस इज ए वेरी स्मॉल फोर्स। ये दिख रहा है 10⁻⁻7 यानी कि बहुत स्मॉल हो गया, डिवाइडेड बाई 1 के आगे 7 जीरोस लगाने का। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महिंद्रा एंड बेंच ऑन विच ही सिटिंग इज जीरो। हाँ समझो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर जीरो है, देन ही विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। वी कैन कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव होंगे, ये हम फाइंड कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता है। हाँ सो द फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। 2. In the above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, suppose friction zero है, starting with zero velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with the time and how? ये हमको find करने का है। See force on Mahindra F is equal to 4.002 10⁻⁻7। Mahindra's mass है 75 kg। According to Newton's second law, the acceleration produced by the force on Mahindra m is equal to 75 kg. Acceleration का formula क्या है, F upon m. See we know one formula, F is equal to ma। ये formula हमने पहले पढ़ा है, force is equal to mass into acceleration। तो acceleration equal to कितना आएगा, F upon m। So 4.002 10⁻⁻7 upon 75, how much we get, 5.34 into 10⁻⁻9 meter per second square। हाँ this is acceleration। Using Newton's first equation, we can calculate Mahindra's velocity after 1 second। महिंद्रा का velocity हम find कर सकते हैं after 1 second। Newton's first equation of motion is v equal to u plus at। ये formula पता है सबको। As Mahindra is sitting upon the bench, initial velocity कितना है, 0। Assuming the bench to be frictionless, v equal to 0 plus 5.34। see v equal to u plus at, u तो 0 है, ये हमने फाइंड किया है 5.34 10⁻⁻9 into 1, that is 5.34 into 10⁻⁻9 meter per second। So Mahindra's velocity after 1 second will be 5.34 into 10⁻⁻9 meter per second। ज़्यादा है या कम है, बहुत कम है, 10⁻⁹। This is an extremely small velocity
द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा. द एक्सेलरेशन will also not remain constant because as Mahindra moves towards Virat, the distance between them will decrease. See, दोनों के बीच में जैसा distance कम होगा, what will happen? An increase in gravitational force, thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion. तो एक सेकंड के बाद इतना स्पीड रहेगा, स्पीड उनका इंक्रीज होते जाएगा. क्यों? एक्सेलरेशन इज देयर, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग.